Before moving actual towards an Arthokshay, we'll just have an introductory part. So, in the universe, only female have been gifted with the power of creation. That's why women are considered as reflect the God in the world. Reproductive phase is the most important phase in the female life, which starts with an puberty, and puberty starts with the onset of menstruation. Change in the physical and mental well-being profoundly affects the menstrual cycle. In present era, the lifestyle, food habits increase stress, strain, and restlessness. These expand the spread of menstrual disorders. Among all the menstrual disorders, Arthoxia is common and daily counted disorder in OPD. This disorder frequently affects the quality of adolescents and young adult women and can be precursors of infertility and other problems. So it requires attention. Directly moving towards then Arthoxia, but first we'll see the normal physiological pervaginal bleeding. What is that, and what is the quantity, and what is the duration? So before understanding the pathology, we should get some information. We should get some information about the normal physiological bleeding. So understanding pathology will be easier for us. So according to the Ayurveda, the Artav is a Masena Pachitam Kalam, Damniyabham Tadartavam. That is explained. So Artav is an cyclic bleeding which occurs in an cyclic manner in for 3 to 7 days at the end of the month. Means there the cycle should be of 30 days, and it's a physiological normal per vaginal bleeding, and it extends for 3 to 7 days. And if you take out the mean, then it is about 5 days. The color of that normal menstrual discharge is red, which resembles like an gunja red lotus flower, or indrako. And the amount of artava is just an chaturanjali praman, or if you look at the modern sciences, then it is given at an 80 ml. So the normal artava is an monthly per vaginal normal bleeding which occurs cyclically. Means cycle should be very regular, and it should be there for 3 to 7 days, and the quantity of that menstrual discharge should be in chaturanjali, or up to a 80 ml. And if the person, if okay, so अगर अपने को आर्तव क्या है ये समझना है, तो उसके लिए नॉर्मल आर्तव क्या है समझना है, तो उसके लिए अपने को आर्तव का प्रमाण और आर्तव का जो नॉर्मल कलर है वो ज्यादा समझना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज फिजियोलॉजी अगर अच्छे से समझ में आए तो पैथोलॉजी अपने को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है. मैंने जैसे आप पहले ही बताया कि आर्तव यह एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल ब्लीडिंग है जो साइक्लिकली हर महीने में फीमेल में पर वजाइनल आता है, except the pregnancy and after the menopause and before the puberty. That is another issue. But during after starting of menarche, that bleeding per vaginal cyclically every month is a normal bleeding. और उसका जो प्रमाण है वो चतुरंजलि प्रमाण बोला है आयुर्वेद में, जो 80 ml तक मॉडर्न साइज के हिसाब से रह सकता है. अगर ये आर्तव जो है अपने को नॉर्मल चाहिए, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए, यानी कोई डिसऑर्डर्स नहीं होने चाहिए, तो फीमेल ने रजस्वला परिचर्या का पालन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर फीमेल रजस्वला परिचर्या का पालन नहीं करते हैं और आर्तव क्षय होने के लिए जो कारणीभूत हेतु है उनका सेवन करते हैं, तो पेशेंट है वो आर्तव क्षय के तरफ जाते हैं. आगे बढ़ने से पहले आर्तव, रक्त, शोणित, पुष्प आर द सिनोनिम ऑफ द रजा. हम एक दूसरे के लिए ये शब्द यूज कर सकते हैं. एंड आयुर्वेद के हिसाब से रजा इज डिस्क्राइब्ड एज एन अनदर उपधातु प्रसा. मॉडर्न मेडिसिन में बोला गया है कि if you look at the modern medicines who defines the menstruation as an cyclical shedding of secretory endometrium along with some amount of blood loss. But Ayurvedic view से उपधातु cannot be considered as an waste product as they uphold the body functions partially.
And according to this, Raja should be a epithelial tissue of entire Mullerian tract, and Rajasrava should be considered as an menstruation. So this is an highlighting point कि रज, रक्त, आर्तव, शोणित, पुष्प आर द सिनोनिम्स आर इन द ग्रंथ. इफ यू लुक, अगर ग्रंथ में देखा जाए तो ये जो शब्द है सभी एक दूसरे के लिए पर्याय माने जा चुके हैं और पर्याय के हिसाब से यूज भी करते आ रहे हैं. और मॉडर्न के हिसाब से उन्होंने बोला है कि मेंस्ट्रुएशन इज एन जस्ट साइक्लिकल शेडिंग है ऑफ सिक्रेटरी एंड्रोमेट्रियम अलोंग विद ब्लड. बट आयुर्वेद के हिसाब से रज ये उपधातु है रस का, और कोई भी धातु उपधातु है ये बॉडी का फंक्शन अपहोल्ड करते हैं. और उसके लिए रज ये खाली ब्लीडिंग नहीं है, ये मेंस्ट्रुअल वेस्ट नहीं है. तो इट्स एन एंटायर इपिथेलियल टिश्यू ऑफ म्यूरिलियन ट्रैक्ट, मींस द एंटायर द एंडोमेट्रियल कैविटी इज द रजा. एंड जो स्त्राव होता है उसको हम लोग, रज का जो स्त्राव रहता है जो मंथली हम लोग देखते हैं उसको हम मेंस्ट्रुएशन करके कंसिडर करेंगे. सो नाउ विल एक्चुअल मूव टुवर्ड्स एन आर्तवक्षय. सो आर्तवक्षय, अगर ये शब्द को हम लोग स्प्लिट करते हैं दो शब्दों में, अगर इसे विभाजन करते हैं तो आर्तव और क्षय ऐसे दो शब्द आते हैं. उसमें आर्तव मीन्स मेंस्ट्रुअल ब्लड और मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज, और जैसे हमने पहले ही देखा कि एंटायर जो लाइनिंग ऑफ इपिथेलियल सेल्स है मेल्युरियन ट्रैक्ट को, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं. क्षय मीन्स डेफिशिएंसी. अकॉर्डिंग टू द सुश्रुत संहिता में बताया गया है, जैसे बताया गया है वैसे आर्तव क्षय यथोचित काल दर्शनम अल्पता व योधि वेदना च. मतलब देर इज deficiency or loss of artava, menstruation does not appear in its appropriate time, or the intermenstrual period is prolonged, as well as that bleeding which occurs which will be scanty or not lasting for the 3 days. मीन्स आर्तवक्षय अगर हम लोग देखते जाए तो उसमें पहला जो सबसे महत्व का लक्षण रहता है वो लक्षण है कि आर्तव का दर्शन है वो उचित काल पे नहीं रहता. वो जिसका जो साइक्लिक ब्लीडिंग चाहिए वो साइक्लिक ब्लीडिंग न होते हुए उसका जो साइकिल है वो प्रोलॉन्ग होते जा रहा है जाता है. और अगर वो पीरियड्स आते भी है, अगर पेशेंट को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट भी होते हैं तो उसमें अल्पता रहती है. अल्पता इन व्यू ऑफ क्वांटिटी भी रह सकती है, जो हमने देखा कि चतुरंजलि प्रमाण और एटीए में उससे भी कम, और ब्लीडिंग नॉर्मल ब्लीडिंग पर वजनम जो है वो 3 to 7 डेज तक रहती है. तो इसका जो ब्लीडिंग है आर्तवक्षय में ये 3 दिन से भी कम आता है. और उसके साथ साथ पेशेंट को योनि वेदना, योनि के अंगों में वेदना भी होती है. तो कोई भी डिसीज को समझने की हम कोशिश करते हैं तो उसका पहले उसके रीजंस क्या है, उसका इटियोलॉजी क्या है, उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, वो जानना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है. बिकॉज कोई भी डिसीज को अपने को ट्रीटमेंट करनी है, अगर चिकित्सा में जाना है तो जैसे हमारे पास एक श्लोक है वैसे संक्षेपात क्रिया योग्य निदान परिवर्जनम, निदान का पहले परिवर्जन करेंगे तो बेसिकली संप्राप्ति का भंग होगा और फिर डिसीज अपना है वो ठीक होते जाएगा. तो ये जो आर्तवक्षय है इसको इटोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है आर्तवक्षय के, वो हम लोग पहले इलेबोरेट करके देखेंगे, जिससे अपने को ये डिसीज ट्रीट कैसे करना है, इसका मैनेजमेंट कैसे करना है ये ज्यादा समझ में आएगा. तो अगर इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की तरफ हम देखते हैं आर्तवक्षय के, तो अति संशोधन पहले बोला गया है कि अति संशोधन की वजह से आर्तवक्षय होता है. तो अति संशोधन में हम लोग पंचकर्म भी कंसिडर कर सकते हैं, शस्त्र कर्म भी कंसिडर कर सकते हैं. जैसे कोई पंचकर्म अगर गलती से ड्यूरिंग मेंसेस दिया जाए, जैसे सभी पंचकर्मों में बोला है कि ड्यूरिंग मेंसेस अगर पेशेंट को आर्तवस्राव हो रहा है, रजस्राव हो रहा है, तो कोई भी पंचकर्म हम लोग नहीं कर सकते. अगर वो पंचकर्म उसको उसी टाइम पे दिया गया गलती से, और समझो उसके प्रकृति से ज्यादा तीक्ष्ण उष्ण द्रव्यों का उपयोग किया गया और उसकी वजह से अगर अतिशोधन हो गया पेशेंट का पंचकर्मों में, अतिवेग, वमन के अतिवेग हो गए, विरेचन के अतिवेग हो गए, फिर भी उष्ण शरीर के उष्मा का घात होके, फिर शरीर का पित्त कम होके अति संशोधन की वजह से आर्तवक्षय हो सकता है. और शस्त्र कर्म में हम लोग देखेंगे तो अगर विगरस क्यूरेटाज मीन्स देयर इज एन
surgery called as dilatation and curettage of endometrial cavity which perform in गर्भपात में भी वो किया जाता है, और समझो नॉर्मल एंडोमेट्रियल ब्लीडिंग है, समझो पेशेंट मेनोरेजिया में है, फिर भी वो सर्जरी किया जाता है। बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट है वो इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में भी एंडोमेट्रियल सैंपलिंग के तौर पे यूट्राइन कैविटी का क्यूरेटाज करते हैं। अगर वो क्यूरेटाज प्रॉपरली नहीं किया गया विगरसली किया गया, अति ज्यादा मात्रा में किया गया, यानी फंक्शनल एंडोमेट्रियम के साथ अगर बेसल एंडोमेट्रियम भी निकाला गया, तो वो पेशेंट्स में अति संशोधन की वजह से, अति संशोधन के शस्त्रकर्म की वजह से भी आर्तवक्षय हो सकते हैं। बिकॉज डेली क्लिनिकल प्रैक्टिस में अपने बहुत सारे पेशेंट एनकाउंटर होते हैं जो हिस्ट्री देते हैं कि हमने को ये महीने में कम ब्लीडिंग आ रहा है, और पिछले महीने में, उसके पिछले महीने में हम लोगों ने डीएनसीज करवाए थे, शस्त्रकर्म करवाया था, जिसके कारण ये हो रहा है क्या। तो तभी अपने को वो फैक्टर समझ में आना चाहिए कि अति संशोधन यानी शस्त्रकर्म की वजह से भी पेशेंट को बेसल एंडोमेट्रियम इरेडिकेट होने की वजह से पेशेंट को एंडोमेट्रियल मेंस्ट्रुएशन गेन नहीं हुआ है, द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज गेटिंग प्रोलॉन्ग, और there is an pain during menstruation and bleeding is very less. Patient always complains कि I had DNC last month or last month and now I am having very scanty bleeding, means bleeding just आया और 2 दिन में रुक गया. So we should have in our mind that the first etiological factor for आर्तवक्षय that is an अतिसंशय, अति संशोधन। उसके बाद आता है अतिशमन। अतिशमन means prolonged administration of drugs which reduce the आर्तव, and that can cause to an menstrual disorder like artavakshaya. Third one is an वेग विधारण। So if the 14 वेग्स, जो 14 वेग बोले हैं, अधारणीय वेग बोले हैं, अगर उनका धारण कोई भी फीमेल करती है तो उसकी वजह से भी आर्तवक्षय हो सकता है। क्योंकि नॉर्मल जो पक्वाशय में पक्वाशय कटी शक्ति सूत्राति स्पर्शेंद्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधान विशेष, ये जो नॉर्मल वात के जो स्थान बोले हैं उसमें वात वायु एग्रीवेट हो जाता है, और उसकी वजह से एग्रीवेशन की वजह से वेग विधारण की वजह से एग्रीवेशन ऑफ वाता होता है, और जो नॉर्मल वात की क्रिया ही है जिसमें आर्तव को लाना, वो भी आर्तव स्त्राव करना और आर्तव को यूट्राइन कैविटी से बाहर वजाने में लेके छोड़ना, ये भी वायु का ही काम है। उसमें बदलाव आके फिर पेशेंट को आर्तवक्षय हो सकता है, उसकी वजह से भी प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है। अगर हम लोग एलोपैथी में जाके वेग विधारण का कोरिलेशन करने को जाए तो देर इज एन एचपीओ एक्सिस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस रहता है। अगर वेग विधारण यानी ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस का अगर वेग रुक गया, यानी हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी और पिट्यूटरी से ओवेरिस तक अगर मैसेज नहीं आया, फीडबैक नहीं आया, तो भी जो इंटरमेस्ट्रुअल पीरियड है वो प्रोलॉन्ग हो सकता है और ब्लीडिंग जो है वो स्कैंटी हो सकता है। उसके बाद आता है फोर्थ वन इज असात्म्यता। असात्म्यता मीन्स असात्म्यता इन व्यू ऑफ फूड भी रह सकते हैं और व्यवहार की वजह से भी रह सकते हैं, जिसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से अमेनोरिया हो सकता है, जिसके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हीमोग्लोबिन और जो बॉडी में न्यूट्रिशनल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम होने की वजह से भी मेंस्ट्रुएशन कैन बी प्रोलॉन्ग। उसके बाद द इम्पोर्टेंट फैक्टर इज मनस्तापा, मीन्स द साइकिक एंड फिजिकल स्ट्रेस अगर ज्यादा रहेगा, कोई भी स्ट्रेस की वजह से भी वात जो दोष है वो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से फिर अपना आर्तव है वो प्रॉपर मंथ पे नहीं आ पाता, और ब्लीडिंग भी उसके साथ साथ कम हो जाता है। उसके बाद एक्सेसिव एक्सरसाइज, व्यायाम बोला है, तो उसके बाद वो भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज नाउ फीमेल आर वर्किंग एवरी टाइम। मीन्स अगर रजस्वला परिचर्या में जैसे मैंने बोला कि अगर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल अपने को चाहिए, अगर नॉर्मल आर्तव आना चाहिए, नॉर्मल आर्तव का फंक्शन होने चाहिए, तो रजस्वला परिचर्या को फॉलो करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रजस्वला परिचर्या में जैसे ही पेशेंट को रजस्त्राव आने लगता है, जैसे फीमेल को आने लगता है, तो उसको बोला है कि उसको आराम देना चाहिए, उसने आराम करना चाहिए। और अभी ऐसा हो गया है कि एवरी फीमेल इज वर्किंग एवरी डे, ट्रैवलिंग रहता है, उसके बाद कोई स्पोर्ट्स में रहते हैं, तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे भी वो फिजिकल एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन इन लाइक एंड मेंस्ट्रुएशन नहीं है तभी भी उतना ही एक्टिविटी रहता है, और मेंस्ट्रुएशन आएंगे तभी भी उतना ही एक्टिविटी रहता है। तो अति व्यायाम की वजह से भी वात वृद्धि होके आर्तवक्षय हो सकता है।
उसके बाद अंशना मीन्स दैट अगेन देर इज एन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बिकॉज ऑफ वर्किंग स्टाइल, फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा होने की वजह से, सभी की वजह से ये सब होके फिर उसकी वजह से भी पेशेंट को आर्तवक्षय हो सकता है। उसके बाद लास्ट, उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला है वो अति मैथुन है, मीन्स रिपीटेड इंटरकोर्स। और ड्यूरिंग मेंसेस कुछ पेशेंट्स रहते हैं वो इंटरकोर्स करते हैं और इन अप्रोप्रिएट पोजिशन रहते हैं इंटरकोर्स के लिए, यानी मैथुन का अति उपयोग करने से भी आर्तवक्षय हो सकता है। और आर्तवक्षय के लिए ये सब इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बोले हैं। और ये सब आर्तवक्षय के फैक्टर्स है उसके अति सेवन की वजह से, नहीं तो रिपीटेड उसका रोज रोज वो करने से आर्तवक्षय होता है। और आर्तवक्षय होने के बाद मेनली तीन जो आर्तवक्षय के लक्षण है वो अपने सामने आते हैं, विच अपने को हम बोल सकते हैं कि मैनिफेस्टेशन ऑफ आर्तवक्षय। हमने जो पहले जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स को देखा उनकी वजह से शरीर में आर्तव की दृष्टि होके, आर्तव दृष्टि की वजह से ये आर्तवक्षय होता है। और आर्तवक्षय होने के बाद ये जो तीन मेन सिम्टम्स है जिसमें उचित काल अदर्शनम, अल्पता ऑफ अर्थवा एंड योनि वेदना अपने को दिखने सिम्टम्स की तरह के दिखने लगते हैं। उसमें उचित काल अदर्शनम मीन्स द प्रोलॉन्ग इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड, मीन्स द menstruation should occur in 28 to 35 days maximum, but there is a prolongation of intermenstrual period, means the period is not occurring in 35 days, maximum 35 days तक रुकने के बाद भी मेंसेस नहीं आ रहे, और वो 35 डेज के बाद भी 7 दिन 8 दिन हो गए फिर भी नहीं आ रहे, तो इंस्ट्रूमेंटेशन पीरियड प्रोलॉन्ग हो गया। तो उसकी वजह से ये फैक्टर्स की वजह से आर्तव में दृष्टि होके पहला जो सिम्टम्स है उसके उचित काल अदर्शनम ये होता है। उसके बाद अल्पता ऑफ अर्थवा इज एन सेकेंड सिम्टम which is less than 3 days. The bleeding is scanty and less than 3 days, and जो ब्लीडिंग है वो 80 ml और चतुरंजलि प्रमाण तक भी नहीं रहता है, उससे भी कम कम होते जाता है। और जो ब्लीडिंग है वो तो 3 दिन के पहले ही एंड हो जाता है, और जस्ट ब्लीडिंग होता ही नहीं पेशेंट को, जस्ट स्पॉटिंग पीवी अपने को दिखता है, विच इज नॉट एक्चुअली अ मेंस्ट्रुअल फ्लो, जस्ट स्पॉटिंग पेशेंट को देखता है। अपने को सिम्टम्स में पेशेंट बोलते हैं कि मेरे को खाली स्पॉटिंग हो रहा है। द थर्ड वन is an yoni vedana, the pain in the genital area. That is a third important symptom of artavakshaya. So this pain is actually because of aggravation of vata, because this endometrial cavity due to artavakshaya is not filled with artava. So the empty cavity is filled with the vata, and vata dosha aggravates, and because of filling this endometrial cavity with vata dosha, there is an pain, pain like symptoms in the genital area occurs, and we can clinically manifestate the artavakshaya like this, like uchit kal adarshanam means the intermenstrual period is prolonged, that alpata of artav, that is scanty menstruation, and yoni vedna, that is pain in the genital area. If you going to before going for the management, we should know what is samprapti. So as we have looked the etiological factors, we know what are the etiological factors. They all are the Vata aggravating and Kapha aggravating symptoms. Because of that, Vata Dushti and Kapha Dushti occurs, which collaborates each other, and there is an they forms an Artav Avrodh. Artav Srotas Avrodh occurs, and because of the Avrodh in the Artav Srotasam, the Rajastrav इज नॉट अकरिंग एट अ प्रॉपर टाइम। रजस्राव जो रहता है वो जो अपने को टाइम अपेक्षित है वो तभी नहीं होता है, और उसके बाद उसका अदर्शन होके आर्तवक्षय ये व्याधि अपने को फीमेल में दिखने लगता है। इसके बाद हम लोग चिकित्सा की तरफ जाएंगे। तो चिकित्सा के तरफ जाने से पहले जो सुश्रुत ने पहला ही श्लोक में बोला है, आर्तवक्षय के श्लोक के ही सेकेंड लाइन में बोला है कि तत्र संशोधन आग्नेयानाम च द्रव्याणाम विधि उपयोग। जैसे ये आर्तवक्षय के व्याधि को मैनेज करने के लिए सुश्रुत ने बोला है कि अपने को आग्नेय द्रव्य का
यूज करना है, जिसकी वजह से वात और कफ दृष्टि है ये दूर हो जाएंगे, और जो स्रोतस में जो अवरोध उत्पन्न हुआ है वो जाके पित्तवृद्धि होगा और अपने को आर्तव क्षय का नाश हो जाएगा। जो संप्राप्ति बोला है उसको भंग करने के लिए पहले तो वात और कफग्न उपचार करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आयुर्वेद के हिसाब से। और उसके लिए चरक सुश्रुत ने बोला है कि उनका संशोधन करने के लिए आग्नेय द्रव्य का जो यूज है वो अपने को करना है। तो आग्नेय द्रव्य में सबसे ज्यादा बोला है कि तिल और गुड़ का क्वाथ अगर दिया जाए एम्प्टी स्टमक, यानी मॉर्निंग को एक बार गुड़ और कृष्ण तिल का क्वाथ अगर मिला के दिया जाए तो उससे ज्यादा उससे कोई भी आर्तव नष्ट हो गया है, आर्तव क्षय हो गया, तो आर्तव जो यथोचित काल पे नहीं अपने को आर्तव आ रहा है तो वो आर्तव आ जाता है और आर्तव स्राव होने लगता है वो काढ़ा पीने से, काढ़ा को देने से। इसमें कृष्ण तिल और गुड़ का उपयोग करने के लिए बोला है। उसके बाद तिल, मांस, चूरा, फिश, शुक्त का वापर यूज करने के लिए भी अपने को बोला गया है। उसके बाद योग रत्नाकर के हिसाब से तिल, शेलू और कारविन्ना का जो कषाय है उसको पीने से सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट इस आर्तव क्षय में आते हैं, जिसका यूज हमने खुद वाईएमटी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में थीसिस के तौर पे मेरे कलीग ने किया था, और मंगेश पाटिल सर के अंडर इसका बहुत अच्छा थीसिस हुआ है और बहुत अच्छा रिसर्च एक्चुअली हुआ है और बहुत अच्छा ड्रग एक गेन हुआ आर्तव क्षय के लिए, जिसको तिल शेलू कारविन्ना कषाय बोलते हैं। उसमें कृष्ण तिल, शेलू और कारविन्ना यानी भोकर का उपयोग किया जाता है, और ये तीनों भी द्रव्य आग्नेय है। उसके बाद ये वातग्न है, कफग्न है और पित्तकर है। तो उसकी वजह से ये जो तिल शीलू कारवेना का जो कषाय है उसको गुड़ के साथ ही अगर एम्प्टी स्टमक पिलाया जाए पेशेंट को, तो सेम एज सबको पता रहेगा कि अगर कोई भी पीरियड्स नहीं आते हैं तो हम लोग यूजुअली ब्लाइंडली बोल देते हैं कि प्राइमरी 10 टैबलेट दो, प्राइमरी 10 टैबलेट 3 days दो, पेशेंट को मेंसेस आएंगे। जस्ट लाइक दैट विड्रॉल the menses occurs with this Tila Shelu Karavinna Kashaya, which is prepared like an path procedure advised in the text, and we mix it with the jaggery, and we just let it cool down, and we tell to have this kadha before food in the morning session. So just like an primulate end, we have see the result that menses gain to the patient. So this kadha gives a tremendous effect, and symptomatically relieves patient. Patient we are very happy with this kadha. तो पेशेंट को जो मेंस्ट्रुअल जो गेन होने चाहिए वो होते ही है, और उसके बाद जो काढ़ा बंद करने के बाद भी जो इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड है वो रेगुलर होके पेशेंट को रेगुलर साइक्लिक ब्लीडिंग गेन हो जाती है। उसके बाद अगर द्रव्यों में देखा जाए, जिसमें हम संशोधन शमन चिकित्सा में नहीं तो फिर ओरल ट्रीटमेंट्स में अगर देखा जाए तो फलघृत का भी बहुत अच्छा रिजल्ट्स है इसमें। उसके बाद बृहत शतावरी घृत का अच्छा रिजल्ट है इसमें। योग रत्ना करने जैसे बोला है कि शीत कल्याण घृत देना है। उसके बाद शतावरी, शतपुष्पा, लशुन, ये जो शतपुष्पा शतावरी काश्यप संहिता में अध्याय दिया है उसमें बहुत सारे आर्तव के व्याधि के अकॉर्डिंगली ये अध्याय पूरा बताया गया है, जिसमें शतपुष्पा और शतावरी और लशुन अध्याय में लशुन का उपयोग बोला गया है। तो इसका हम लोग अगर अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, यानी जैसे बोला है कि कोई भी ट्रीटमेंट देने से पहले अपने को दुष्यम, देशम, बलम, कालम, अनलम, प्रकृति, वयम, सत्व, सात्म्य तथा आहारम, ये सब देख के ये 10 परीक्षा करके फिर अपने को ट्रीटमेंट अरेंज करनी है। उस हिसाब से हम लोग अरेंज करके शतपुष्पा देना चाहिए कि शतवरी देना चाहिए, ये ध्यान में रख के हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं। यानी अगर शोधन की अपेक्षा है तो शतपुष्पा बेटर काम करेगी, और अगर शमन की अपेक्षा है और अपने को ग्रहण करना है एंडोमेट्रियम का तो शतावरी ज्यादा अच्छा काम करेगी। लहसुन तो सबसे अच्छा वातग्न द्रव्य बोला गया है, और लहसुन अध्याय में बताए गए जैसे बताया कि कोई भी वात व्याधि रहने दो उसका नाश ये लहसुन के ही उपयोग से हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे हमने देखा इटोलॉजिकल फैक्टर्स में तो सभी में वात दोष एग्रीवेट होना ये मेजर है, यानी निदान जो है उसमें हेतु में सबसे ज्यादा वात बढ़ता है हेतु के सेवन से। तो लहसुन का उपयोग करके भी हम लोग उसका
शमन कर सकते हैं और आर्तवक्षय से पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं। अगर आसव अरिष्ट में देखा जाए तो लक्ष्मण अरिष्ट और दशमो अरिष्ट भी अच्छा काम करते हैं। बिकॉज लक्ष्मण अरिष्ट के जो उद्बोध आया है उसमें बोला है कि 2 महीने में अगर आप लक्ष्मण अरिष्ट का सेवन करते हैं तो कोई भी योनि रोग रहने दो, वो उसका हल हो जाता है लक्ष्मण अरिष्ट के सेवन से। तो लक्ष्मण अरिष्ट भी अच्छा काम करेगा। अगर आप आर्तवक्षय में ये दशविध परीक्षा मैंने भी जैसे बोला कि दुष्यम देशम बलम कालम का अगर हम लोग यूज करके अप्रोप्रिएट ड्रग अगर सिलेक्ट करेंगे तो उससे हो जाएगा। वटी में चंद्रप्रभा वटी और रजप्रवर्तनी वटी जो है आयुर्वेदिक इसमें बोला गया, अपने टेक्स्ट में बोले गए, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं ब्लीडिंग रिगेन करने के लिए, स्कैंटी ब्लीडिंग जो रहती है उसको कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और जो पेन रहता है मेनली उसको कम करने के लिए भी चंद्रप्रभा वटी और रजप्रवर्तनी वटी अच्छा काम करते हैं, जिससे योनि वेदना पूरी तरह से मिट जाते हैं और पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ आ जाता है। अगर पंचकर्म की ओर हम लोग जाए तो बहुत मतांतर दिखते हैं ग्रंथों का। अगर हम लोग देखते हैं तो पंचकर्म में डल्लन ने बताया है कि वमन कर्म इज इम्पोर्टेंट एज कफग्न चिकित्सा अपने को करनी है, और उसके साथ साथ श्रोतावरोध भी दूर हो जाता है वमन कर्म से, और पित्त का जो आग्नेय तत्व है वो बढ़ता है। और पित्त का आग्नेय तत्व बढ़ने से जो आर्तव में जो ऐसे आग्नेय संशोधक आग्नेय द्रव्य का उपयोग करना चाहे तो पित्त में आग्नेय गुण बढ़ने से भी पीरियड जो है रिगेन हो जाते हैं। जो इंटरमेंस्ट्रुअल जो पीरियड है वो जो बढ़ गया है वो कम होके मेंस्ट्रुएशन रिगेन हो जाता है। परंतु चक्रपाणी की वजह से चक्रपाणी की ओर से अगर देखा जाए तो उन्होंने वमन फॉलोड बाय विरेचन करने के लिए बोला है कि वमन कर्म करो उसके बाद फिर विरेचन कर्म दो, तो उससे ज्यादा रिलीफ मिलेगा, श्रोतावरोध दूर होगा और जो आर्तवक्षय का नाश हो जाएगा। उसके साथ साथ काश्यप में बोला है कि यह जो आर्तवक्षय जो व्याधि है अनुवासन बस्ती के साध्य व्याधि है, यानी अनुवासन बस्ती का उपयोग हम लोग ये व्याधि के लिए करते हैं तो आर्तवक्षय का नाश हो सकता है। और सुश्रुत ने बोला है कि नष्टार्थों में जैसे ट्रीटमेंट, जैसे चिकित्सा सूत्र चिकित्सा बोली है उस हिसाब से ट्रीटमेंट आर्तवक्षय के लिए भी किए जाए, यानी बस्ती का प्रयोग करना सुश्रुत के हिसाब से इम्पोर्टेंट है आर्तवक्षय का नाश करने के लिए, जिसमें बस्ती के उपयोग से वात दोष का हरण तो हो ही जाएगा, और स्थानिक चिकित्सा के तौर पे भी बस्ती पक्वाशय में दिए जाते हैं। और जो आर्तव स्रोतस है, यानी आर्तव स्रोतस और पक्वाशय एक दूसरे के पास में ही रहते, तो और उस वजह से ज्यादा इफेक्ट आएगा बस्ती की वजह से। और बस्ती देते समय यानी अनुवासन दो निरोवासन निरोह बस्ती दो, कोई भी बस्ती में ऐसे देखा गया है कि बस्ती देना जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं पेशेंट को, दोज पेशेंट हु आर अमेनोरिक यानी अमेनोरिया उनमें सिम्टम दिख रहा है, यानी इंटरमेस्ट्रल पीरियड प्रोलॉन्ग हो रहा है, और हम लोगों ने उन्हें कोई भी ट्रीटमेंट ओरल ट्रीटमेंट नहीं दिया है, जस्ट हम लोगों ने बस्ती देना स्टार्ट किया, तो बस्ती देना स्टार्ट करने से भी दूसरे तीसरे चौथे दिन हम लोगों को ब्लीडिंग पर वजाइनल स्टार्ट होते हुए दिखा है। यानी बस्ती आल्सो एक्ट एज एन स्टिमुलेंट, और जैसे प्रोजेस्टेरॉन है तो ईस्ट्रोजन चैलेंज टेस्ट हम लोग देते हैं, वैसे ही बस्ती की वजह से भी पेशेंट को जो अमेनोरिया का सिम्टम है वो बंद हो, वो जाके पेशेंट को मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। बिकॉज जो अधोग वायु है उसके ऊपर काम होता है, और जो वायु का मैंने जैसे बोला कि वायु का जो स्थान है वह पक्वाशय है, और पक्वाशय के स्थान में वात का एग्रीवेशन होने की वजह से भी मेंस्ट्रुएशन प्रोलॉन्ग हो सकता है। तो उसके ऊपर चिकित्सा बस्ती के हिसाब से ज्यादा अच्छी होती है, और बस्ती देने से भी पेशेंट को मेंसेस रिगेन हो जाते हैं। और नेक्स्ट मंथ पे हम लोगों ने टारगेट करके अगर प्री मेंस्ट्रुअल यानी जो डेट पे ये मेंसेस आए हैं वो वही डेट के अगर 5-6 दिन पहले पेशेंट को अगर बस्ती देना स्टार्ट किया तो जस्ट लाइक एन विड्रॉल ब्लीडिंग पेशेंट को विदाउट एनी ओरल ट्रीटमेंट पेशेंट को इंटरमेंस्ट्रुअल जो साइक्लिक ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद उत्तर बस्ती का प्रयोग भी हम लोग आर्तवक्षय में कर सकते हैं। दोज हु आर एक्चुअली विलिंग फॉर कंसेप्शन इनफर्टिलिटी का जो पेशेंट है उनमें भी, और जिनको बहुत ज्यादा पेन है और स्कैंटी ब्लीडिंग हो ही रहा है, कोई भी ट्रीटमेंट से आपको ज्यादा राहत नहीं मिल रही है, ओरल ट्रीटमेंट भी दे के बस्ती भी दे के हो गया, फिर भी पेशेंट का जो ब्लीडिंग है वो स्कैंटी है, नॉट लास्टिंग मोर देन 3 days और लेस देन 3 days में स्टॉप हो रहा है, और देर इज एन पेन।
सो पोस्ट मेंसेस वी कैन स्टार्ट विथ एन उत्तर बस्ती. उत्तर बस्ती अभी यहाँ पे भ्रूण करना अपने को अपेक्षित है, ना कि शोधन करना. तो भ्रूणीय द्रव्य से यानी फलग्रुत से अगर अश्वगंधा तेल, फलग्रुत से अगर नहीं तो शतावरी घृत से अगर हम लोग उत्तर बस्ती देंगे, तो भी आर्तवशय का जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि स्कैंटी ब्लीडिंग, और देर इज लेस फ्लो ऑफ आर्तवा नॉट लास्टिंग फॉर 3 days, अगर वो अपने को ट्रीट करना है और योनि वेदना अगर ट्रीट करनी है, तो उत्तर बस्ती का भी इफेक्ट बहुत ज्यादा आता है. अगर थर्ड वन जो सिम्टम्स हमने देखा जिसमें पेन योनि वेदना है, उसमें अगर हम लोग हिंगवादी तेल का मात्रा बस्ती, बल्ला तेल का मात्रा बस्ती, दशमूल तेल का मात्रा बस्ती अगर देंगे, तो भी पेशेंट को जो पेन है वो एज एन पेन किलर, एज वी यूज एन एंटीस्पाज्मोडिक और डाइक्लोफेनेक लाइक ड्रग्स भी यूज करते हैं हम लोग पेन रिलीफ के लिए, एज सेम एज दैट वी कैन गेट एन पेन रिलीफ, एज दैट फास्टर पेन रिलीफ विथ एन मात्रा बस्ती ऑफ हिंगवादी तेल और बल्ला तेल और दशमूल तेल. सो ये शमन चिकित्सा भी है और शोधन चिकित्सा यानी पंचकर्म भी हम लोग यूज कर सकते हैं, और शोधन ओरल मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं. मगर इसमें पेशेंट सिलेक्शन इज द इम्पोर्टेंट, प्राइम इम्पोर्टेंट है. सो जैसे 10वीं परीक्षा, मैंने बार बार वही बोल रहा हूँ कि 10वीं परीक्षा पेशेंट का करना और पेशेंट सिलेक्ट करके उसके ऊपर ड्रग सिलेक्ट करना, और पेशेंट को पंचकर्म देना चाहिए कि पहले शमन चिकित्सा देना चाहिए, डिसाइड करना, ये वैद्य का प्राइम मोटो रहना चाहिए. अगर कोई भी अपने को ट्रीटमेंट अगर सक्सेस करनी है, तो पेशेंट सिलेक्शन एंड ड्रग सिलेक्शन और ट्रीटमेंट मॉडलिटी सिलेक्शन अपने को इम्पोर्टेंट है. और उसका तो जब हम दर्शन प्रश्न और प्रश्न का स्पर्श का ये करेंगे पेशेंट से, तभी अपने को पता चले कि कौन सा ड्रग और कौन सा पंचकर्म और किस टाइम पे क्या यूज करना चाहिए. अगर ये आर्तोक्षय हम लोग क्लिनिकली कोरिलेट करने जाएंगे मॉडर्न मेडिसिन के साथ, तो ओलिगोमेनोरिया और हाइपोमेनोरिया, ये दो जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग डिसऑर्डर से ये सामने आते हैं. तो उसमें ओलिगोमेनोरिया के अगर हम डेफिनेशन देखे जाए, तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ऑकरिंग more than 35 days apart and which remains constant at that frequency is called as oligomenorrhea. That means the menstrual bleeding वो 35 days होके गए हैं फिर भी नहीं आ रही, और वही रेशो में वो वही 35 डेज मोर देन 35 डेज के रेशो में वो कंटिन्यू हो रही है, फ्रीक्वेंसी पे कंटिन्यू हो रही है, तो उसको ओलिगोमेनोरिया कहते हैं. जो रिजेंबल होता है अपने फर्स्ट आर्तवक्षय के सिम्टम्स से, जिसको हम लोग बोलते हैं कि उचित काल अदर्शनम. और डेफिनेशन ऑफ हाइपोमेनोरिया अगर हम लोग देखने जाए, तो व्हेन द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज अनड्यूली स्कैंटी एंड लास्ट फॉर लेस देन 2 days, इट्स कॉल्ड एज हाइपोमेनोरिया. तो अगेन ये आर्तव अल्पता का जो सेकेंड सिम्टम है हमारा आर्तवक्षय में बोला गया हुआ, उसको जो यथोचित काल अल्प दर्शनम अल्पता उसको रिजेंबल करता है, तो जिसमें 2 days से कम ब्लीडिंग रहती है, जिसको हम लोग हाइपोमेनोरिया बोलते हैं. अगर मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से, मॉडर्न साइंसेस के हिसाब से अगर कॉज देखे जाए, तो जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हमने देखे हमारे आयुर्वेदिक हिसाब से, और जो पॉजिटिव फैक्टर्स बोले मॉडर्न मेडिसिन आर सेम, ऑलमोस्ट सेम है. जिसमें फर्स्ट इज ड्यूरिंग एडोसेंस एंड प्रीसीडिंग मेनोपॉज देर कैन बी अ हाइपोमेनोरिया और देर इज ओलिगोमेनोरिया. देन सेकेंड वन इज ओबेसिटी, स्थूलता. उसके बाद स्ट्रेस. उसके बाद एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी, जैसे हमारे पास बोला है व्यायाम. स्ट्रेस में भी हमारे पास बोला गया है कि मनस्तापा. उसके बाद पीसीओएस लाइक कंडीशंस इन द ओवरीज. पीसीओएस पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पीसीओडी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज के हिसाब से एचपीओ एक्सिस में डिस्टर्बेंस होने की वजह से देर कैन बी अ हाइपोमेनोरिया और ओलिगोमेनोरिया. उसके बाद हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया कैन बी अ कॉज ऑफ प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ने की वजह से भी द इंटरमेस्ट्रुअल पीरियड कैन बी एन प्रोलॉन्ग. उसके बाद हाइपरथायरॉयडिज्म इन अनदर कॉज. उसके बाद ओवेरियन एंड एड्रिनल एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स can elevate an abnormal AMH value and which can leads to an amenorrhea. उसके बाद tubercular endometritis which is also important. Tubercular endometritis में endometrium gets swollen, so there is an again hypomenorrhea or oligomenorrhea. And malnutrition, if there is an
multi micronutrients deficiency, then it can be malnutrition, oligomenorrhea. In investigation, first we should for in the investigation first we should, if patient is patient, then should evaluate is it amenorrhea due to pregnancy or Dr. Abhaya Kolangale, please switch off your mic. Yes, sir, you can continue. in investigation. If patient is married, or then we should first evaluate that pregnancy is there or not, because in many cases we start with the treatment without looking at then pregnancy, without doing a pregnancy test, and later on we comes to know that and it's a pregnancy and amenorrhea, that is an yathochitakal adarshani because of pregnancy. So we should evaluate first by doing just a simple urine pregnancy test. Then in the blood test, we can do an thyroid profile, then FSH, LH, insulin and prolactin hormonal profile. Then for looking at the nutrients and hemoglobin, we should do an CBC. And if you want to know then underlying causative factors for oligomenorrhea, hypomenorrhea, we can do an ultrasonography for evaluating, for getting knowledge about other factors like PCOS or whatever the other factors contributing, or ovarian tumors, or endometrial hyperplasia, or endometrial baldness, or fibroid uterus. We will come to know what is the exact cause for the oligomenorrhea or hypomenorrhea. Then according to the allopathy, the treatment is not specific, means there is no specific treatment for the hypomenorrhea or oligomenorrhea. Just depending on the causative factors we should treat, or just for the regulation of period we should put the patient on the oral contraceptive pills, that combination pills or single pills, that will be depend on the challenge test. We should give first challenge to the patient, at progesterone challenge or estrogen challenge. Patient bleeds with that, so we can have in mind ki patient is estrogen deficient or progesterone deficient, so we can start with an that combined pills or single pills for the 21 days from the periods, and from the third or fourth day of the menses, and we can go for the cyclic regular OC pills for the regulating the periods. Then hormone replacement, if there is a deficiency of some hormone, so we can replace that hormone, and we can treat the patient. Then calcium and vitamin D3 we can supplement to the patient, as vitamin D3 lowers calcium and vitamin D3 lowers the abnormal elevated AMH value, and it creates the serum anti-inflammatory hormones, so that can reduce the swelling on the ovaries, and that can have the good HPO axis, hypothalamic pituitary axis, and patient can regain with the normal menstruation. And the last important thing is treating the underlying cause and condition. So causative for detection of the underlying cause and condition, we can do a sonography and the multiple blood tests like thyroid profile, LH, FSH, prolactin values. So if prolactin is high, then we can lower the value of prolactin. If serum insulin is high and patient is not getting menses, so we can consider and we can give an insulin sensitizer to the patient. If patient in underlying cause, if patient is with PCOD, then we have to treat PCOD. And if patient is having the tumors like condition, which is adrenal androgen producing tumors, then we have to treat that tumor for regulation of the period. So everything, the causative factors and treatment is, if we see, then the Ayurvedic treatments are better treatment for this particular डिसीजेस, बिकॉज अगर हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट में जाएंगे, अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर पेशेंट को स्टार्ट करेंगे, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैज एन इट्स ओन साइड इफेक्ट ऑन द फीमेल बॉडी. अगर हम लोग देख रहे हैं कि पेशेंट को हमको इनफर्टिलिटी के लिए आई है, उसको हम लोग ट्रीटमेंट में देख रहे हैं, तो उसको आर्तवक्षय है और आर्तवक्षय की वजह से इनफर्टिलिटी है, वंध्यत्व है, ऐसा हम लोग अगर थिंक करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग ओसी पिल्स पेशेंट को नहीं दे सकते.
एज ओसी पिल्स अगर देना स्टार्ट करेंगे तो दीज आर द बर्थ कंट्रोलिंग, द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. सो अगेन दैट टाइम फॉर द patient has wasted because as we started with an oral contraceptive pills. हार्मोन रिप्लेसमेंट इज ऑल्सो सेम. अगर हार्मोन रिप्लेसमेंट अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो पेशेंट वो महीने में कंसीव नहीं हो सकती है एज हार्मोन्स की वजह से. अगेन देर इज एन कॉन्ट्रासेप्शन. Calcium, vitamin D3 is okay. Lifestyle changes are most important thing according to Ayurveda also, because Pathya Apatya is the prime for the any treatment. And अगर कोई दूसरा कॉज है और उसकी वजह से ऐसा हो रहा है तो भी स्त्रोता अवरोध हम लोग कंसिडर करके हमारे जो आयुर्वेद में जो शोधन कर्म बोले हैं, जैसे पंचकर्म का उपयोग हम लोग करके वो अंडरलाइन कॉजेस है, वो जो स्त्रोता अवरोध है वो दूर करके पेशेंट को रिजल्ट दे सकते हैं. तो अगर हम लोग लास्ट में अगर एक कंक्लूजन देखते हैं, अगर समझो ये सबका समरी अगर देखना चाहते हैं, तो आर्तवक्षय इज मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 सिम्टम्स, जिसमें बेसिक है कि उचित काल में दर्शन नहीं होता है, आर्तव का अल्पता रहता है और पेशेंट को योनि वेदना रहती है. उसके जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है जिसमें हम लोग देखते हैं कि अति संशोधन, अति शमन, वेग विधारण, मनस्ताप, अति व्यायाम, उसके अति मैथुन, इसकी वजह से वात वृद्धि और कफ वृद्धि होती है और उसकी वजह से ही स्रोतों में अवरोध उत्पन्न होके फिर पेशेंट को आर्तवक्षय दिखता है. तो फिर वात कफग्न उपचार करके जो भी शमन चिकित्सा यानी जो ओरल ट्रीटमेंट्स में हमने जो भी देखे कि आग्नेय द्रव्य का उपयोग करके, नहीं तो फिर आग्नेय द्रव्य का उपयोग करके अगर नहीं हो रहा है तो फिर पंचकर्म का उपयोग करके अप्रोप्रिएट पेशेंट को सिलेक्ट करके हम लोगों ने अगर वात कफग्न जो चिकित्सा किया और जो अवरोध उत्पन्न हुआ है स्रोतस में अगर उनको दूर किया और पित्त वृद्धि करके पित्त वृद्धि किया और पित्त का आग्नेय गुण अगर जो है वो अगर इंक्रीज किया तो पेशेंट को आर्तवक्षय से मुक्ति मिल सकती है. और विद एन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हम लोग पेशेंट का इंश्योर भी कर सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट और बाय कंटिन्यूइंग दिस ट्रीटमेंट यू कैन have your pregnancy. अगर if we are treating this arthokshay mainly because of the in view of infertility, we can assure the patient कि हम लोग ये ट्रीटमेंट के साथ साथ अपने जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट है वो भी स्टार्ट कर सकते हैं और आपकी इस ट्रीटमेंट के दौरान भी कंसेप्शन आपको हो सकता है. सो दिस इज फ्रॉम माय साइड फॉर arthokshay. Thank you very much everyone to for the patient listening.